students, myself Sanjay Kumar Gupta, Science and Maths teacher in St. Michael's Academy, Bethiya. Students, this is my 10th lecture of Science for Class 8, Chapter 2, Microorganisms. In this section, we shall learn about the most important function in our atmosphere, that is nitrogen fixation. So, in this section, we shall learn first importance of nitrogen, second nitrogen fixation, third methods of nitrogen fixation, and fourth nitrogen cycle. So students, you know that nitrogen is an important gas in our atmosphere. It is found in abundant amount, which covers 78% of the total atmospheric constituents of gases. Students, as we don't know more about the uses of nitrogen, because it cannot be felt by us, but it is the most important life-given factor for plants and animals. Nitrogen is the most important constituent of protoplasm, which is the main constituent of amino acid, protein, and nucleic acid. Students, you should know that the nitrogen which is found in abundant amount are found in the molecular form and they cannot be used directly by plants. So it needs to convert them into nitrogenous compound so that it can be taken easily by plants, and through green plants these nitrogenous compounds are sent to other heterotrophic plants as well as in animals. So the process by which atmospheric nitrogen is to be converted into compounds of nitrogen, it is called nitrogen fixation. Nitrogen fixation is the process which is known as the conversion of atmospheric nitrogen in useful nitrogen compound is called nitrogen fixation. ऐसी प्रक्रिया जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आवश्यक नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल दिया जाए, उसको हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानेंगे. सो देयर आर 3 मेथड्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. फर्स्ट, atmospheric nitrogen fixation, second biological nitrogen fixation, and third one is industrial nitrogen fixation. Atmospheric nitrogen fixation is completed by nature, as you know
striking during rains. This time when electric discharge happen, then nitrogen and oxygen combine together, and then they are to be mixed with water, and water dissolve these oxides of nitrogen and convert into nitrogenous compound. स्टूडेंट्स, जिस समय आकाश में बिजली कड़कती है उस समय हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड तैयार करते हैं। फिर बारिश के पानी के साथ ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिनको हम नाइट्रिक एसिड के नाम से जानेंगे, ये पुनः हमारे वातावरण में घुलकर अल्काइलाइन का फॉर्मेशन कर देते हैं। सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन दिस प्रोसेस सम यूजफुल बैक्टीरिया एज वेल एज सम साइनोबैक्टीरिया हेल्प अस टू कन्वर्ट दिस atmospheric nitrogen into useful nitrogenous compound, as some bacteria are Rhizobium, Azotobacter, Clostridium, while some cyanobacteria that are called blue-green algae, in which Anabaena and Nostoc work and convert this nitrogen into nitrogenous compound. And third process is done in our industries. This is called industrial nitrogen fixation, which is completed by two methods. First, Haber's process, and second, Birkeland-Adis process. In Haber process, the atmospheric nitrogen is joined with hydrogen in the presence of catalyst and converts into nitrogenous compound. As well as in Birkeland-Adis process, nitrogen is to be mixed with oxygen in an electric arc, and by this process this nitrogen is converted into nitrogenous compound. This is to be mixed with fertilizers and given to plants. Now students, we will learn about nitrogen cycle. Means जो नाइट्रोजन हमारे वातावरण में प्रचुर मात्रा में है उसको पहले नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और फिर यही नाइट्रोजनस कंपाउंड जो पौधे और जंतुओं के द्वारा यूज कर ले जाते हैं वह फिर वेस्ट मटेरियल के रूप में जब उनके शरीर से बाहर आते हैं तो अगेन सम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन, यानी वे इस बेकार के नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिर से उसी नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और उसको हमारे वातावरण में मिला देते हैं। सो नाउ वी वॉच एंड लर्न हाउ द नाइट्रोजन साइकिल इज टू बी कंप्लीटेड। नाउ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल मीन्स कि नाइट्रोजन चक्र मीन्स द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन element between living and non-living components of the biosphere is called nitrogen cycle। अर्थात
हमारे जीवमंडल में सजीव और निर्जीव के बीच नाइट्रोजन के तत्वों का चक्रण, उनका यह परिभ्रमण ही नाइट्रोजन चक्र कहलाएगा। स्टूडेंट्स, दिस नाइट्रोजन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स। फर्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी पहला कौन सा हो गया? नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज डन बाय बैक्टीरियाज एंड साइनोबैक्टीरियाज, as well as it is done by atmospheric method by the lightning discharging. Then it comes to soil where it is to be absorbed by plants in the form of nitrogenous compound, and this process is called assimilation of nitrogen. यानी पहला क्या हो गया? नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन assimilation of nitrogenous compound. Again, the plants and animals die or excrete their waste materials, and then the nitrogenous compound again mix with environment where the process of ammonification completes. And third process is ammonification, and after that these ammonias or compounds of nitrogen again goes to environment, and some bacteria that are called denitrifying bacteria work on them and again change into atmospheric nitrogen or gaseous nitrogen. Means ki 4 steps are there. First, nitrogen fixation, second, assimilation of nitrogenous compound, third, ammonification, and fourth, denitrification. Now let's understand by this picture, as here given atmospheric nitrogen. This atmospheric nitrogen is turned into compound of nitrogen as through lightning fixes नाइट्रोजन, क्योंकि लाइटनिंग के दौरान क्या होता है कि वो नाइट्रोजन हम और ऑक्सीजन ये आपस में प्रतिक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं. अगेन दे आर चेंज इनटू नाइट्रिक एसिड एंड अगेन दे आर टू बी टर्न्ड इन सॉइल बाय अल्काइलिन. अगेन they are to be converted by bacteria or cyanobacteria in the form of nitrogenous compound. So this part is called nitrogen fixation part. Again, these nitrogenous compound are sent to the soil, from where these nitrogenous compound are to be assimilated, means आत्मसात कर लेते हैं. ये जो पौधे होते हैं, हरे पौधे, वो इसी नाइट्रोजन कंपाउंड का क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं, भोजन में यूज करते हैं. एंड देन अपटेकिंग बाय प्लांट्स एंड द ग्रीन प्लांट्स जस्ट आर ईटेन बाय एनिमल्स एज वेल एज अदर हेटरोट्रॉपिक प्लांट, एज आई टोल्ड अबाउट इट अर्लियर. तो अब क्या हुआ कि ये जो पौधे अपना भोजन बनाए, इस भोजन को जंतु लेते हैं और अगेन एनिमल्स excrete them or they die, as well as plant also die, or the parts of plants mix with soil which are made up by nitrogenous waste. अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये कहां चले जाते हैं, फिर से हमारे उसी सॉइल में मिल जाते हैं. अगेन दिस प्रोसेस इज जस्ट कंप्लीटिंग which is called ammonification, यानी यहाँ अमोनिया का पुनः निष्कर्षण होगा. अगेन इन दिस प्रोसेस द रेस्ट nitrogen means ammonia is to be converted into gaseous nitrogen by deep nitrification bacteria.
अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, उसको डीनाइट्रीफाइंग करके कहाँ मिला देते हैं, फिर से उसी एनवायरमेंट में मिला देते हैं। और इस तरह से एज यू आर लुकिंग दैट और साइकिल इज टू बी कंप्लीटेड। और इसी चूंकि ये साइकिल एक नाइट्रोजन का साइकिल है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र के नाम से जाने। नाउ दिस इज टाइम टू रीड द बुक, लर्न something more and know about it more and more and grow our knowledge. Nitrogen fixation. Nitrogen is an essential element of protoplasm. It is a constituent of amino acid, proteins and nucleic acids. Plants obtain nitrogen from soil in the form of nitrogen compounds as nitrates. But our atmosphere is the main source of nitrogen for all living beings. Nitrogen forms 78% of the atmospheric gases. It exists in air in molecular form and cannot be assimilated by plants. It needs to be converted into absorbable nitrogen compounds to be utilized by plants. Students, about this I told you earlier. Now, what is nitrogen fixation? The conversion of free atmospheric nitrogen into useful nitrogen compounds is called nitrogen fixation or fixation of nitrogen. Methods of nitrogen fixation. Nitrogen fixation occurs by atmospheric nitrogen fixation, biological nitrogen fixation, and industrial nitrogen fixation. Atmospheric nitrogen fixation. It is also known as fixation of atmospheric nitrogen by electric discharge. यानी इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग रेन्स व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स नाइट्रोजन and oxygen in the atmosphere combine due to electric discharge and form oxides of nitrogen. These dissolve in rainwater producing nitric acid. It comes down to earth and reacts with alkaline salts in the soil forming nitrates. यानी जब यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण प्रतिक्रिया करते हैं तो वहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की प्राप्ति होती है और फिर वर्षा के जल में ये घुलकर नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। फिर जब ये धरती पर आते हैं तो कुछ क्षारीय लवणों के साथ मिट्टी में प्रतिक्रिया करते हैं और वहाँ नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। दीज नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर nitrogen fixing organisms. They convert atmospheric nitrogen into nitrogen compounds. अर्थात ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मे बी फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया लाइक एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रिडियम और सिम्बैटिक बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। अर्थात ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र हो सकते हैं जैसे ओजाटोबैक्टर की बात करें, क्लोस्ट्रिडियम की बात करें, जबकि कुछ
ऐसे बैक्टीरिया जो दलहन के पौधों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, जैसे राइजोबियम की बात करें तो ये स्वतंत्रता से नहीं रह सकते हैं। राइजोबियम लिव्स इन द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक बीन्स एंड फिक्सेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। यानी राइजोबियम दलहन के पौधों के जड़ों के गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देता है। सम साइनोबैक्टीरिया दैट आर नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे like Anabaena and Nostoc also fix atmospheric nitrogen into nitrates. Some leguminous plants like ginkgo and alnus are also able to fix atmospheric nitrogen. They occur in paddy field and enrich the soil with nitrates. Industrial nitrogen fixation. It is the manufacturing of ammonium salt in chemical plants, यानी का उत्पादन किया जाता है जो केमिकल प्लांट्स के अंतर्गत किए जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट आर मैन्युफैक्चर्ड एट कमर्शियल लेवल यूटिलाइजिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इट इज कैरिड आउट by the following method about which we have talked in earlier class. In Haber's process, nitrogen and hydrogen are made to combine in the presence of a catalyst. Ammonia obtained this way is used to manufacture ammonium salt. यानी इस तरह से जो अमोनिया का उत्पादन होता है वह अमोनियम सॉल्ट के रूप में किया जाता है। इन बर्कलैंड आइडिज प्रोसेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेड टू कंबाइन बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रिक आर्क के साथ कंबाइन कराकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। As nitrogen fixation by microorganisms produces about 175 million tons of nitrogen compounds per year, अर्थात एक साल में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है उसकी मात्रा लगभग 175 मिलियन टन होती है। About 70% of total nitrogen supply is contributed by microorganisms. Remaining 30% is supplied from chemical fertilizers and atmosphere. यानी हमारे नाइट्रोजनस कंपाउंड की पूरी सप्लाई का लगभग 70% हिस्सा हमारे जीवाणु जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के द्वारा कर दिया जाता है और बाकी के 30% केमिकल प्रोसेस से तैयार होते हैं जो हमारे खाद इत्यादि से पौधों को या एटमॉस्फेयर में दिया जाता है। नाउ वी नो अबाउट नाइट्रोजन साइकिल इन डिटेल। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। द मेन स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल आर फर्स्ट nitrogen fixation. Atmospheric nitrogen is fixed into nitrogen compounds such as nitrates and made available to plants by different methods as studied earlier. Students, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता दिया कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे राइजोबियम, क्लोस्ट्रिडियम या लाइटनिंग स्ट्राइक द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है और इसमें नाइट्रोजन फिक्स करके फिर पौधों को प्रदान किया जाता है। नाइट्रोजन एसिमिलेशन। प्लांट्स एब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स दैट इज नाइट्रेट्स एंड अमोनियम सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल एंड यूज देम इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स
and other nitrogenous compound. This is called nitrogen assimilation. यानी अब पौधे इस अकार्बनिक नाइट्रोजन कंपाउंड जो नाइट्रेट्स और अमोनियम सॉल्ट के रूप में होते हैं, ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं और फिर वे अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और दूसरे नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को ही हम नाइट्रोजन आत्मसात्मीकरण या नाइट्रोजन एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन यूटिलाइज प्लांट प्रोटीन्स एंड सिंथेसाइज एनिमल प्रोटीन, यानी जंतु क्या करते हैं, वे प्लांट के द्वारा प्रतिपादित प्रोटीन का उपयोग करते हैं और फिर उसको एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अर्थात प्रोटीन और दूसरे नाइट्रोजन यौगिकों को तोड़कर अमोनिया में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही अमोनिफिकेशन के नाम से जानी जाती है। इट इज कैरिड आउट बाय सम बैक्टीरिया एंड फंगाई इन द सोइल। दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज प्रोटीन इनटू अमोनियम सॉल्ट एंड अमोनिया, यानी ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रोटीन को अमोनियम सॉल्ट और अमोनिया में ब्रेक कर देते हैं। नाइट्रिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम सॉल्ट इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अर्थात अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। दिस इज कैरिड आउट by the nitrifying bacteria like Nitrosomonas and Nitrobacter. Ammonia is oxidized to nitrites by Nitrosomonas. Nitrites are further oxidized to nitrates by Nitrobacter. यानी आपने पहले क्या देखा कि इस नाइट्रोजन को कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमनस और नाइट्रोबैक्टर ने उसको ऑक्सीडाइज्ड किया और फिर इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट किया। फिर ये नाइट्राइट पुनः ऑक्सीडाइज्ड किए जाते हैं, जो कार्य नाइट्रोबैक्टर के द्वारा होता है। नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, और फिर मिट्टियों में ये जो नाइट्रेट्स मिले होते हैं उनको पौधे अपने भोजन के रूप में एब्जॉर्ब करा लेते हैं। नाउ डीनाइट्रिफिकेशन, यानी अब उस अमोनिया को कैसे फिर नाइट्रोजन के रूप में लाया जाए, इसके लिए डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। द कन्वर्सन ऑफ नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द सॉइल और वाटर इनटू फ्री मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। अर्थात मिट्टियों में उपस्थित नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने की प्रक्रिया ही डीनाइट्रिफिकेशन कहलाएगी। द बैक्टीरिया दैट कैरी आउट दिस कन्वर्शन आर कॉल्ड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और वैसे बैक्टीरिया जो इस तरह के परिवर्तन को करते हैं उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। एज सुडोमोनस इज अ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम, जिसमें सुडोमोनस का नाम आता है, वह एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम के रूप में जाना जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, in class I already told you about nitrogen cycle. You can observe it and understand.
by this picture how it happens. Now this is time to do checkpoint 6 as well as practice time. Thank you.